sentence, while usually gives you two kinds of meaning. एक while का यूज होता है contrast draw करने के लिए, right? और एक while होता है जो end की तरह यूज होता है सेंटेंस में, as a conjunction यूज होता है. तो जब कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ करना होता है तो यूजुअली वो सेंटेंस while से ही चालू होते हैं. Like, while my brother prefers to have a vegetarian diet, I prefer to have a non-vegetarian diet. In that, you're putting up a contrast that your brother's diet is entirely different than yours diet, right? So while वहाँ पे contrast के लिए आ रहा है, लेकिन when while is coming between the sentence, it usually is implying what? वो एक end का ही role play करता है, एक conjunction का ही role play कर रहा है. And what kind of elements do we write with end? Things which are similar. Whenever I am writing A and B will be similar. They'll not be different words. वो quality में कुछ ना कुछ similar ही होते हैं. You'll never say that he's smart and stupid, right? These are two different words. अगर वो smart है तो B quality कोई hard working, persistent, कोई similar quality आ जाएगी. या तो दोनों ही negative quality होंगी या दोनों ही positive quality होंगी, which gives a good enough clue. क्योंकि हमें second part तो पता ही है. This clue we already are aware about, that we are obviating damage to auxiliary structures. If you are obviating damage to auxiliary structures, is it a good thing or bad thing? If you're obviating damage to auxiliary structures, it's good, right? Obviating is to prevent something from happening. किसी को होने से रोक देना या prevent कर देना, that is obviating. और आप damage को होने से रोक रहे हो, it's a positive situation. So A choice has to be something positive, right? Within the options, how many words you see as positive? Diagnosis is kind of neutral word, right? Incurring the diagnosis will not make any sense. Diagnosis का मतलब है सिर्फ disease का एक diagnosis आप कर रहे हो जिससे कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं पता चल रहा है, राइट? ये कोई पॉजिटिव वर्ड नहीं आ रहा है. मीन इज व्हाट? मीन इज योर अपीयरेंस. आपका अपीयरेंस, योर वे ऑफ टॉकिंग इज योर मीन, which again doesn't give any positive or negative turn to this sentence. Prognosis is the next step of diagnosis. In prognosis आप क्या करते हो? आप predict करते हो कि वो disease आगे चल के क्या हो सकती है. Based on the diagnosis, you put up a prognosis that if you have these traits or symptoms, in future you might have these kind of problems. That is a prognostication. So we are left with only two choice, costs and benefits, and very tactfully they have created the sentence where they've used word incurred. And you'll not be shocked, but then you might have seen that incurred oftentimes have been used with what? Cost. ये combination आपने कई बार देखा होगा, कई sentences में, कई articles में you might have come across this, that incurred के साथ हमेशा cost ही आता है. But let's put cost and see if it is giving that positive turn which we are looking for. So doctor का जो presentation at the conference, it gave numerous suggestions for incurring something of the treatment while obviating damage to auxiliary structures. Let's put cost over there, incurring the cost of the treatment while obviating damage to auxiliary structures. So if something is incurring cost, that doesn't look like a positive thing. If you're incurring cost on something, that looks like that you'll be draining money in that, right? You'll be putting up your money, but it doesn't give a very positive tone to it, which we are looking for. क्योंकि आगे का जो पार्ट है वो तो पूरा पॉजिटिव ही, obviating damage to auxiliary structures. So in that context, benefits is a better word. Incurring the benefits of the treatment while obviating damage to auxiliary structures. Cost का तब होता जब जो while के बाद वाला पार्ट है वो भी कुछ नेगेटिव लिखा होता कि कॉस्ट तो लगी रही है पर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है या डैमेज फर्दर हो रहा है. In that case, we could have gone with a negative choice or something that gives a negative impression to the sentence. तो ये एक तरह का ट्रैप ही था कि इनकरिंग के साथ हमेशा कॉस्ट यूज होता है, तो मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स दे गो फॉर इनकरिंग द कॉस्ट. लेट्स गो टू क्वेश्चन 6. क्वेश्चन 6 पे आप लोग अप्लाई करो कि आपको क्या क्लूज दिख रहे हैं. उस बेसिस पे इवन इफ यू आर नॉट अवेयर विद ब्लैंक के जो ऑप्शंस हैं, आप अपने चॉइस का एक वर्ड वहां पुट करने की कोशिश करिए. या सिर्फ इतना पता लगाइए कि कुछ अच्छा हो रहा है पहले ब्लैंक में कि कुछ बुरा हो रहा है. सिर्फ ये जो पॉजिटिव नेगेटिव कंटेक्स्ट है, दिस विल आल्सो हेल्प यू अ लॉट. So talking about the first blank, Richardson's handling of some scandal successfully prevented what seemed poised to become the spectacular dissipation of his collation. Samriddhi says for first it can be adroit. Shivang says adroit and looming. Yashvi says adroit and looming. Right. So how has he handled this scandal?
अच्छे से स्कैंडल उसने हैंडल किया है कि बुरा किया है, गुड और बैड, दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वही अगर हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करें तो वी कैन वेरी वेल सी फ्रॉम सम कीवर्ड्स that he has used it in good way, he has done it in good way because he has prevented that from happening. और अगर वो हो जाता तो एक कोलेशन, एक जो गठबंधन बनने वाला था, अलायंस क्रिएट होने वाली थी, ये वेस्ट हो जाती. डिसिपेशन इज, इफ यू रिमेंबर, डिसिपेशन हमने किया भी था लास्ट वाली शीट में, इट इज वेस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज. तो वो कोलेशन जो इतनी मेहनत से बनाई होगी, वो कोलेशन टूट सकती थी, वेस्ट जा सकती थी. सो ही हैज प्रिवेंटेड दैट स्कैंडल फ्रॉम हैपनिंग. So obviously the way he has handled that scandal, it will be a good way. So we'll be looking at positive words for blank one. Looking at those words, adroit is one of the words which looks positive. Adroit means skillful. Being skillful at something is adroit. Do you remember any synonyms for adroit? Acumen, शिवांग, ठीक है. Acumen पर sharp के लिए होता है. Dexter, right, Devika. Dexter is one synonym which can use for adroit. So dexterous and adroit, they both talk about being very skillful at something, artful, skillful, adroit, artistic भी बोल सकते हैं निहारिका. Ambidextrous थोड़ा सा अलग context हो जाएगा शिवा. Ambidextrous में somebody who can use both of his hands uh, with equal ability. That makes you ambidextrous. Opposite can be maladroit, Samriddhi, right? Inept भी हो सकता है, right? Inept. Adapt का just opposite is inept. Adapt is skillful at something and inept is not skillful at something. Virtuoso हो सकता है Chris, right? So Richardson, and first word is what? Penitent. Penitent is to basically being remorseful or repenting on something. इसके भी वर्ड्स आपको याद होंगे. पेनिटेंट के याद है? रिमोर्स करना या किसी चीज पे पश्चाताप करने के क्या क्या वर्ड्स होते हैं? Lugubrious is just a sad situation, Niharika, but contrite, yes, Devika, contrite we can use Yashvi. समृद्धि, regret, और कोई वर्ड्स याद आ रहे हो आप लोगों को जो regret बताते हैं? Rueful, right? Remorse. Lachrymose is emotional, touchy situation. No, not exactly regret करना, but a touchy and that kind of situation is. So Richardson का क्या हैंडलिंग हुआ होगा? Adroit handling of dash scandal. Heterogeneous का वहाँ पे कोई मीनिंग नहीं आ रहा है, right? Of dash scandal successfully prevented what seemed poised to become the spectacular dissipation of his collation. So sometimes if within the sentence you are finding some difficult words or maybe you're not aware with those terms, जैसे poised नहीं पता है, dissipation नहीं पता है, तो do not worry. अगर आप इतना समझ पा रहे हैं कि कुछ बुरा हो रहा है कि अच्छा हो रहा है, अगर आपको इतना भी कंटेक्स्ट समझ आ रहा है, you can still break the question, right? तो अगर हमें इतना भी समझ आ रहा है कि यहाँ पे उसने जो चीज करी है वो अच्छी करी है, तो उतना भी चलेगा. आपको पॉइज्ड का मीनिंग नहीं पता है, चलेगा. डिसिपेशन नहीं पता है, इट्स कंप्लीटली फाइन. लेट्स लुक एट ब्लैंक टू ऑप्शंस. सो व्हाट दिस स्कैंडल कुड बी, ये स्कैंडल कैसा होगा? कुछ बड़ा स्कैंडल होगा, राइट? जिस तरीके से वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि दिस स्कैंडल कुड हैव रिजल्टेड एंड इट वाज पॉइज्ड टू बिकम द स्पेक्टिकुलर डिसिपेशन. सो बेस्ड ऑन दीज काइंड ऑफ क्लूज, पॉइज्ड का मतलब होता है समथिंग दैट इज अबाउट टू हैपन, जो सामने आने वाली है, दैट इज पॉइज्ड, right? Very similar word within this is looming, which you guys have already told me. So looming is a danger or something that is about to happen या जो सबके सामने आने वाला है. तो looming usually danger के लिए या कोई भी negative चीज के लिए ही use होता है. जैसे looming job losses because of COVID-19. ठीक है? We are witnessing looming job losses because of COVID-19. So job losses are about to happen, they are around the corner और वो अभी होने ही वाली हैं. So ये जो job losses हैं, ये क्या है? They are looming, something which is going to happen. वो poise अलग है. This poise to become is शिवांग, वो poise जो काम वाला होता है ना, that is a different meaning. Here जो poised इन्होंने use किया है ना, that is about to happen वाला ही है. Something that is about to happen. सॉरी मैंने पोज लिख दिया, इट इज पॉइज्ड. सो समथिंग दैट इज अबाउट टू हैपन, ये उसके लिए यूज हुआ है पॉइज्ड. ठीक है? वो मीनिंग भी होता है जो आप कह रहे हो, दैट इज आल्सो देयर.
बहुत सारे वर्ड हैं जिनके यूसेज आपको अलग जगह पे you'll see that उनके यूसेज चेंज हो जाते हैं सेंटेंस में. सो फ्रेटफुल एंड इक्यूमेनिकल टू वर्ड्स जो हैं उनके मीनिंग क्या होते हैं वो बता देता हूँ मैं आपको. सो फ्रेटफुल इज समथिंग दैट इज अ डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन जो आपको डिस्टर्ब कर दे या अनॉय कर दे, राइट. अ डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन इज अ फ्रेटफुल वन. यस यशवी, कोई पार्शियल मार्किंग नहीं होती है which makes them really tricky, that if you get one blank correct and one blank is wrong, it is all wrong. So in fact 3 blank questions बड़े difficult हो जाते हैं for many people, क्योंकि अगर आपके वहाँ पे 2 भी blank सही हैं लेकिन एक blank आपका गलत हो गया, थर्ड blank या कोई भी blank गलत हो गया, तो कोई partial marking नहीं है. The entire question will be considered wrong. So this is what makes your test really tricky. So fretful is a distressing situation and ecumenical is something that is जिसकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, राइट आयुषी. कैथोलिक इन नेचर और समथिंग दैट इज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, दैट इज जस्ट दैट इज इक्यूमेनिकल. तो ये दोनों ही वर्ड्स यहाँ पे फिट नहीं हो रहे हैं. लूमिंग जा सकता है, लूमिंग स्कैंडल, बिकॉज दिस स्कैंडल वाज अबाउट टू हैपन. 7th क्वेश्चन पे आ जाते हैं. The Daesh forces were just barely held at bay by a loyalist battalion dashed by its allies reinforcements. So ऐसा देखिए, कंपल्शन नहीं होता है कि यू हैव टू स्टार्ट विथ योर फर्स्ट ब्लैंक ओनली. इफ यू आर फाइंडिंग योर सेकंड और थर्ड ब्लैंक इजी टू फिल, यू कैन इवन स्टार्ट बैकवर्ड्स. आप पीछे से भी चालू कर सकते हैं. तो मुझे लगता है कि इसमें सेकंड ब्लैंक को फिल करना बहुत इजी है. अगर एलाई का रीइंफोर्समेंट आ गया है, एलाई कौन होते हैं आपके? एलाई आर योर फ्रेंड्स, राइट, जो आपका साथ देने वाले हैं. तो अगर आपके फ्रेंड्स का रीइंफोर्समेंट आपको आ गया है, तो दैट विल डू व्हाट फॉर योर सिचुएशन, इट विल मेक योर सिचुएशन बेटर इन अ वॉर, इन एनी काइंड ऑफ थिंग. अगर आपके एलाइज आपके साथ आ जाते हैं तो वो आपकी सिचुएशन को अच्छा ही करता है, बेटर करता है. तो बेटर करने के लिए सेकंड ब्लैंक के वर्ड्स अगर मैं देखूं, तो देयर आर 3 वर्ड्स व्हिच आर गिवन इन व्हिच ऑब्विएट इज टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, जो अभी हमने ऊपर भी देखा था, राइट. ऑब्विएटिंग द ऑक्सिलरी डैमेज टू ऑक्सिलरी स्ट्रक्चर्स का एक सेंटेंस था. bolstered is to provide support to something, and sapped is किसी की एनर्जी खत्म हो जाना या completely थक जाना, which will not make any sense over there. एलाई के reinforcement से क्या होगा, एक boost मिलेगा, so it should be bolstered, right. As many of you have already mentioned, it should be bolstered. So it is providing support because of the allies reinforcements. How about the first blank? These forces, can they be described as revolting, outclassed or fascist? फैशिस्ट बोलने के लिए हमारे पास इनफ क्लू नहीं है, राइट. व्हाट इज फैशिस्ट फोर्सेस? फैशिस्टिक हैं, इसके लिए हमारे पास कोई क्लू है क्या? हाउ डू यू डिफाइन अ फैशिस्टिक फोर्स? अ नॉन डेमोक्रेटिक, राइट, अ काइंड ऑफ फोर्स जो ऑथोरिटेरियन रेजिम पे चलती है, राइट समृद्धि. जो डिसेंट को तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे ना योशी. डिसेंटर्स को ऐसी फोर्सेस, डिसेंटर्स आर पीपल हु हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, राइट, from the ruling government or ruling party. They have difference of opinion, so they actually brook no dissent. If you remember that sentence, याद है आप लोगों को, एक किया भी था, brook no dissent. So these kind of fascist forces, ये क्या करेंगी, कोई भी इनसे अगर different opinion रखता है तो ये उसको वहां पे रहने नहीं देंगे. So जितनी ऑथोरिटेरियन regime पे कंट्रीज चलती है वहां यही होता है. Anybody who holds a different point of view opinion will not be part of the system. They'll be wiped out. They'll not tolerate any dissent, right Ayushi? ठीक है. तो फैसिस्टिक फोर्सेस कैसी हुई? इसी तरह की ऑथोरिटेरियन रिजिम की, जो कोई अपोजिशन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखे वहां पे. दैट काइंड ऑफ क्लोज सिस्टम इज अ फैसिस्टिक वन, which used to be in the case of Hitler, right now in North Korea. That is how things are going. And revolting and outclassed, 2 words are left. And outclassed looks very tempting option, right? Because we can see that they were barely held at bay by loyalist battalion. So it seems like these forces were outclassed. जो फोर्सेस इन पे अटैक कर रही थी वो आउटक्लास्ड होंगी. आउटक्लास का मतलब आपसे सुपीरियर होना किसी वे में, दैट इज आउटक्लास्ड. इफ समथिंग हैज आउटक्लास्ड यू, उसने आपको सरपास कर दिया है इन सम कंटेक्स्ट. इट कुड बी पावर, it could be reputation, it could be in class. So surpassing your power is outclassing. But यहाँ पे they were barely held at bay, and because they were bolstered, so obviously outclass नहीं हुए ये.
आउटक्लास होते तो वाइप आउट हो चुके होते, राइट? और ये लॉयलिस्ट बटालियन है, दैट इज अनदर क्लू फॉर अस। इसलिए कीवर्ड्स पे बहुत ध्यान देते रहिएगा जब भी आप सेंटेंस पढ़ें, तो उसमें क्लूज को ध्यान दीजिए आप कि क्लू क्या क्या लिखे हैं। तो यहाँ पे बेयरली हेल्ड भी एक क्लू था, बट साइमल्टेनियसली लॉयलिस्ट भी बटालियन दिया हुआ है। तो ये जो बटालियन है ये कैसी है? ये लॉयल है, जो भी यहाँ हो रहा है दे आर लॉयल अगेंस्ट दैट। सो ऑब्वियसली जिससे वो लोग लड़ रहे हैं वो क्या हो जाएगा? रिवोल्टिंग फोर्सेस हो जाएंगी। लॉयल का अपोजिट क्या हो जाएगा? रिवोल्टिंग। द रिवोल्टिंग फोर्सेस वर जस्ट barely held at bay by loyalist battalion bolstered by its allies reinforcements. Are you getting my point? Outclassed बहुत टेम्पटिंग था यहाँ पे ऑप्शन, पर हमने क्यों नहीं यूज किया है? क्योंकि एक तो आउटक्लास हुए नहीं है, दे वर हेल्ड एट बे, बेयरली हेल्ड किया है, और बाद में एलाई का रीइंफोर्समेंट आने से सपोर्ट भी मिला है। दैट्स व्हाई आउटक्लास हम नहीं ले रहे हैं ऑप्शन में। वी आर टेकिंग रिवोल्टिंग विच इज कनेक्टिंग वेल विद लॉयलिस्ट बटालियन। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन 8 पे। While it would be lovely if what he said were true, I am afraid he is dash liar. Pretty simple question. We are not appreciating this guy, right? We are saying that it would be lovely if what he said were true, but we are afraid he is some kind of liar, right? So we are going to define him as some kind of liar, and that liar would be of some bigger quality. Samriddhi says he could be a libelous liar. Okay. बाकी लोग क्या बोलते हैं? What is a libelous quality? Libelous quality क्या शो करती है? विलीफाई समृद्धि। तो हमें कैसे पता वो लोगों की इमेज खराब करने के लिए झूठ बोलता है? A libelous one, if somebody is libelous by his talks and conversation, will usually tarnish somebody's image, right? वो किसी की इमेज को डिस्ट्रॉय करेगा या उस पर दाग लगाएगा, उसके बारे में रूमर्स फैलाएगा, राइट? दैट इज अ libelous one. Libelous talks या libelous conversation, या if somebody is libelous, so basically उसकी क्वालिटी क्या होगी? वो दूसरों की इमेज को खराब करते हैं by saying bad things about them. सो ये अगर उस तरह का लायर है, उसके लिए हमारे पास कोई कंटेक्स्ट में हमें पता नहीं है कि वो दूसरों की इमेज खराब करता है, इसका कोई कंटेक्स्ट नहीं है। सिर्फ इतना सा कंटेक्स्ट है कि ही इज अ लायर। इट वुड हैव बीन लवली इफ व्हाट ही सेड वर ट्रू, कि अच्छा होता अगर जो उसने बोला है वो सच होता, बट आई एम अफ्रेड दैट ही इज सम काइंड ऑफ बिग लायर। यू आर लुकिंग फॉर अ वर्ड जो इस तरीके की चीज बताए कि जो लायर है वो कोई बिग क्वालिटी का लायर है, जो लिबलस नहीं बताता है। लिबलस बता रहा है कि वो ऐसा लायर है जो लोगों की इमेज खराब करता है, जिसके लिए कोई कंटेक्स्ट नहीं है हमारे पास। सो लिबलस बीइंग अ नेगेटिव वर्ड, we might have to not go with this word. Avowed, nullifying, unverified, and forfeited. Forfeited is very similar to banishment, in which you lose right and privileges for something, that is forfeiting rights. आपके banish या ban लग जाता है आपके ऊपर, that is forfeited. Unverified is unchecked, which is a simple word. Shivang is saying unverified liar. Unverified नहीं होगा ना, ये तो verified type का liar है. Everybody knows that he is a liar. Shivang. अनवेरिफाइड है तो लोगों को पता ही नहीं है कि वो लायर है, बट यहाँ पे कंटेक्स्ट ऐसा क्रिएट किया जा रहा है कि वो जो बोल रहा है अवॉर्ड हो जाएगा, राइट? अवॉर्ड इज समथिंग दैट इज पब्लिकली नोन। डू यू रिमेम्बर दिस वर्ड वो? लेट्स टेक अ वो। तो वो का मतलब शपथ लेना होता है, राइट? एंड समथिंग इज अवॉर्ड इज इट इज पब्लिकली अनाउंस्ड और पब्लिकली नोन। सो इफ ही इज अ अवॉर्ड लायर, सो ही इज व्हाट काइंड ऑफ लायर? A publicly known liar. Everybody knows that he has habit of lying on things. Are you getting my point? किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। इफ यू थिंक कोई और वर्ड हो सकता था, नलीफाइंग तो बिल्कुल ही नहीं जाएगा। नलीफाई लायर की कोई क्वालिटी नहीं होती है। नलीफाई इज टू न्यूट्रलाइज समथिंग, किसी के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करना या लेसन कर देना इज नलीफाई। तो ये जो इस तरीके के कंटेक्स्ट होते हैं ना, आपने देखा होगा यहाँ पे ही सेट के साथ यूजुअली वॉज आता है। यहाँ पे उन्होंने क्या यूज किया है? ही सेट वर। आई के साथ भी आपने यूजुअली वॉज ही देखा है, बट देयर आर सर्टेन सेंटेंसेस वेयर यू मेक आई वर। दीज आर बेसिकली हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स। इनको हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स कैटेगराइज किया जाता है। इनकी समझ रखने से भी आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। इफ यू कैन आइडेंटिफाई हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स, यू विल अंडरस्टैंड कि वो चीजें इमेजिनेटिव है, तो उसका सच होना इमेजिनेशन है। दिस इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। जब भी वर आ जाए जहाँ पे वॉज आना चाहिए,
ये सारी सिचुएशन हाइपोथेटिकल होती है. जैसे हम इस तरह का सेंटेंस कई बार यूज करते हैं, इफ आई वर यू आई वुड हैव डन, if I were you I would have done things differently. So again, I cannot become you. This is just for the sentence, for the sake of putting up that sentence. I'm saying if I were you. So if I become you, I would have done things differently, which is practically not possible. So whenever you are in hypothetical mood or tone, you usually substitute was with were. आप was हटा देते हैं और वहां पे were ले आते हैं, जिससे रीडर को भी समझ आ जाए कि ये स्टेटमेंट क्या है, हाइपोथेटिकली बोला गया है, इट कैन नॉट बी ट्रू. which is similar case over here. He said was true अगर होता तो ये hypothetical नहीं होता, अभी ये imaginary sentence है. So we all know that he's not a truthful person, he's a liar. What are the other words for liar? Liar के synonyms और क्या क्या होते हैं? Fib, fabulous Devika, right? Charlatan ठीक है, charlatan pretend करता है of possessing some knowledge which he actually doesn't have. Dupe is more of cheat. Prevaricate is definitely lie, Shiva. Prevarication is lie. आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन 9 पे आ जाते हैं. Quibbling, Satyam, more than lying, it's arguing on petty issues. Petty arguments bring करना है quibbling. छोटे छोटे इश्यूज लाके लड़ना. डिसीट चीट की कैटेगरी में आ जाएगा हर्षला. 9 क्वेश्चन पे आ जाते हैं. अब सिमिलर जैसे आपको ए एंड बी टाइप का कंटेक्स्ट मैंने समझाया था ऊपर, वही उसी तरह के रूल्स ए और बी पे भी आपके बैठ सकते हैं, राइट? A and B में you'll be looking at two things which are similar in nature, right? When the situation is A or B, you'll be looking at two things which are actually opposite. Somebody cannot be smart or hardworking. If you're putting up qualities of somebody with or, तो आप क्या बोलोगे? He is either smart or stupid. So you'll be putting up two different qualities over there. Within context आप A और B को contrast में लेकर आएंगे जब और लिखा होता है. तो यहाँ पे भी चीजें बड़ी सिंपल है कि और वाला पार्ट तो हमें पता है, राइट? और में क्या लिखा हुआ है? दे आर सेइंग जब भी किसी की सजा डिसाइड करनी होती है तो ज्यूरी टेक्स दिस पर्टिकुलर थिंग इनटू कंसिडरेशन. व्हाट? कि ही एक्टेड ऑन सम मोटिव्स, वी आर नॉट श्योर व्हाट दीज मोटिव्स आर सो फार, और he truly did act primarily to shield the neighborhood from the kingpin's reprisal. So kingpin is kind of जो भी वहाँ का गैंग का हेड होगा वो किंगपिन हो गया, राइट? सो उसके रिप्रेजल, उसके बदले से बचाने के लिए नेबरहुड के लिए उसने कुछ किया था, टू शील्ड द नेबरहुड फ्रॉम किंगपिन्स रिप्रेजल. सो रिप्रेजल इज रिटेलिएशन ऑफ किंगपिन. तो उसके रिटेलिएशन से बचाने के लिए उसने किया है या उसका मोटिव कुछ और है? अब यहाँ पे बहुत सारे टेम्पटिंग ऑप्शंस हैं. लॉट ऑफ यू, समृद्धि, अर्णव, Devika and Ayushi are suggesting ulterior, which is hidden, right? If something is ulterior, it is hidden. So एक context ये हो सकता है hidden or known, right? If I go with option criminal, so I will create a context like this one, criminal or non-criminal. If I go with option violent, I'll create a context violent or non-violent, right? इसी तरीके से बनेगा ना अगर मैं इनमें से कोई भी ऑप्शन लूं. मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्रिमिनल वायलेंट बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे गेट स्टक विद दीज ऑप्शंस. सो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग व्हाई दे विल नॉट बी. अल्टीरियर इज राइट आंसर जो आप लोगों ने बोला है, पर क्रिमिनल और वायलेंट क्यों नहीं आएगा? बिकॉज वो कंटेक्स्ट आप ऐसा बना रहे हो. इफ यू आर सेइंग दैट फर्स्ट थिंग इज अ क्रिमिनल मोटिव, तो और के पूरा बाद वाला पार्ट क्या क्रिएट हो गया? इट बिकम्स अ नॉन क्रिमिनल एक्टिविटी. बट हाउ आर वी श्योर अबाउट that the action he has taken is a non, although this action what he has done, उसके मोटिव अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए उसने नॉन क्रिमिनल या नॉन वायलेंट मूव किया है, ये हमें कैसे पता? उसने किंगपिन के रिप्रेजल से कम्युनिटी को बचाने के लिए या नेबरहुड को बचाने के लिए, if he has murdered kingpin, obviously that category they cannot be categorized as non-criminal or non-violent activity. If he has actually killed the kingpin to shield his neighborhood,
तो वो किलिंग वाली एक्टिविटी नॉन क्रिमिनल तो हो ही नहीं सकती, ना नॉन वायलेंट हो सकती है, राइट? पर हम लोग हिडन और नोन के साथ जा सकते हैं कि या तो ये मोटिव है जो वो बता रहा है, दिस इज अ नोन मोटिव, यही मोटिव था उसका, कि उसका कोई हिडन एजेंडा था विच ज्यूरी इज नॉट अवेयर अबाउट. So that's why we can go with option ulterior or known. We are not going with criminal or non-criminal or violent or non-violent because we are not very sure what is the second जो पूरा उसने किया है किंगपिन से बचाने के लिए, वो एक्शन नॉन क्रिमिनल कैटेगरी में आ सकता है क्या, वो नॉन वायलेंट कैटेगरी में आ सकता है. वी आर नॉट श्योर अबाउट इट क्योंकि वो कंटेक्स्ट हमें दिया ही नहीं है. उसने बचाया ये हमें पता है, पर बचाने के लिए उसने एक्शन क्या लिया है एंड वेदर दैट एक्शन कैन बी कैटेगराइज्ड एज नॉन क्रिमिनल नॉन वायलेंट, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट. सो विल गो विद ऑप्शन अल्टीरियर मोटिव्स, राइट? रेसिडिविस्ट करके भी एक वर्ड दिया है which I think we have discussed at some point of time. Recidivism is if you commit your first crime, you'll not be called as recidivist. You commit your crime second time, you will be a repeated offender, but then you'll not be called as recidivist. But now you keep on repeating your crimes every time, you have become a recidivist. तो बहुत मल्टीपल टाइम्स एक क्राइम को करते जाना दोहराते जाना, राइट सत्यम, रिपीटेड क्राइम इज रेसिडिविस्ट. तो बार बार जुर्म करने को हम रेसिडिविज्म कहते हैं. दैट पर्सन बिकम्स अ रेसिडिविस्ट. जो रिपीटेड ऑफेंडर या रिपीटेड क्राइम्स करता है वो रेसिडिविस्ट है. सो ऑब्वियसली रेसिडिविस्ट मोटिव्स हैं ये हमें पता नहीं है. lucrative motives will obviously not go in the context, right? Ayush, lucrative is attractive. Let's look at question number 10th now. ये तो बड़े सिंपल क्वेश्चन है जिसमें आपको पॉजिटिव नेगेटिव देख के चीजें समझ आ जाएंगी. अंडर द मिसमैनेजमेंट ऑफ सोशलिस्ट पार्टी बर्मा ड्रिफ्टेड इनटू व्हाट? सो मिसमैनेजमेंट इज योर क्लू. मिसमैनेजमेंट हुआ है अगर वहां पे सोशलिस्ट पार्टी के अंदर, तो बर्मा इकोनॉमिक किस चीज में गया होगा, और साथ में आइसोलेशन भी लिखा है, तो ए एंड बी वाला भी आप लगा सकते हैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे. सो बी वर्ड इज आइसोलेशन. एक कंट्री का आइसोलेशन में आ जाना विल नॉट बी अ गुड थिंग, राइट? So if B is negative, A has to be negative, and overall context is also negative. Looking at word mismanagement, it's easy to put something like negative over here, जो isolation से भी match करे. So Samriddhi is saying decrepitude, Arnav is also saying decrepitude. ठीक है. और कोई ऑप्शन आप लोगों को लग रहा है? Economic monotony will not give any sense, right? इकोनॉमी का मोनोटोनस होना का मतलब यह हुआ कि उनके यहाँ पे ट्रेड प्रैक्टिसेस, डेफिसिट्स, एवरीथिंग इज सेम. इट इज ऑल गोइंग सेम without any slum and without any growth. That will make it monotonous. But here we are looking for a negative connotation in the sentence. So monotony कुछ नहीं बता रहा है. Opulence तो positive ही बता रहा है that economy is good, right? Non-challenge कि इकोनॉमी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा है, इकोनॉमी अभी भी इंडिफरेंट है विद द थिंग्स, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि मिसमैनेजमेंट हुआ है. तो वी डेफिनेटली वांट टू पुट अप अ कंटेक्स्ट, समथिंग बैड हैज हैपेंड. ओनली टू वर्ड्स आर लेफ्ट व्हिच इज डेक्रेपिट्यूड एंड रेक्रिमिनेशंस. सो रेक्रिमिनेशंस यू ऑल नो इज व्हाट? आरोप प्रत्यारोप करना, राइट? एक दूसरे पे जो एक्यूजेशंस होते हैं, म्यूचुअल एक्यूजेशंस होते हैं, दैट इज रेक्रिमिनेशंस. एंड व्हाट इज डेक्रेपिट्यूड? डेक्रेपिट्यूड इज बेसिकली ruined हो जाना, worn out हो जाना. If you remember the word, याद है किसी को? Dilapidated. तो किसी बिल्डिंग के लिए भी बोल सकते हैं, किसी इकोनॉमी के लिए भी बोलते हैं हम लोग. ठीक है, तो अगर कोई डिलापिडेटेड कंडीशन में है या डेक्रेपिट्यूड कंडीशन में है, सो वॉर्न आउट हो गई है, बहुत पुअर कंडीशन हो गई है, उसका कोई रख रखाव नहीं है. तो जो हिंदी में जर्जर बोलते हैं ना कि कोई चीज जर्जर हो गई है, सो दैट इज एग्जैक्टली डेक्रेपिट्यूड. ठीक है, कि वो इतनी खराब हो गई कि वॉर्न आउट हो गई है, पूरी टूट फूट गई है, तहस नहस हो गई है. सो बर्मा ड्रिफ्टेड इनटू इकोनॉमिक डेक्रेपिट्यूड. नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन 11 पे. दिस शुड बी इजी. अगर आपने क्लू आइडेंटिफाई कर लिया तो ये सेंटेंस काफी इजी हो जाएगा. Even the ones who are not aware with majority of options. Samriddhi says it should be autonomy. As the effects of foreign competition, a sense of threat and dash reached each canton, talk of independence grew more common.
ठीक है, तो फॉरेन कंपटीशन भी आ रहा है और कुछ चीज थ्रेटेंड हो रही है एंड दिस इज रीचिंग ईच कैंटन. सो इंडिपेंडेंस इज योर क्लू. टॉक ऑफ इंडिपेंडेंस ग्रू मोर कॉमन. तो ये जो कैंटनमेंट्स हैं, ये क्या बात कर रही हैं कि हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं. हम राइट, ऑटोनॉमी आ सकता है. समृद्धि एंड रोहन, दे बोथ आर सजेस्टिंग ऑटोनॉमी. सो थ्रेटेंड ऑटोनॉमी इज एंटरिंग, राइट. दैट्स व्हाई टॉक ऑफ इंडिपेंडेंस इज ग्रोइंग मोर कॉमन. सो विद इंडिपेंडेंस बहुत गुड इनफ क्लू था. इम्यूनिटी का यहाँ पे कोई थ्रेटेंड इम्यूनिटी कुछ नहीं होती है, राइट. योर इम्यूनिटी माइट गेट थ्रेटेंड, बट थ्रेटेंड इम्यूनिटी कुछ नहीं होता है. योर इम्यूनिटी माइट गेट थ्रेटेंड, बट threatened is not an adjective which you can use with immunity. Apotheosis is, what is apotheosis? हाँ, किसी चीज को बड़ी हाइट्स पे ले आना, राइट. डेवलपमेंट पे या हाइट्स पे ले आना, दैट इज apotheosis. Belligerence is that aggressive attack वाला जो बिहेवियर होता है, दैट इज अ belligerent behavior, राइट. eagerness to fight, जिसमें आप हमेशा किसी से लड़ने झगड़ने के लिए तैयार रहते हैं. तो यहाँ पे एग्रेशन की कोई बात नहीं हो रही है कि दीज कैंटन्स दे आर गोइंग टू फाइट विद ईच अदर. ऐसा कोई बात नहीं हो रही है. रेसिडिविज्म वी हैव जस्ट डिस्कस. रेसिडिविज्म इज act of repeating your crime, which again has not any context, doesn't have any context within the sentence. नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन 12 पे. अब ये उस तरह के क्वेश्चन है जिसमें आपको ह्यूब्रिस्टिक टर्म पता ही होना चाहिए. इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट ह्यूब्रिस्टिक टर्म, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑप्शन विल गो. इफ somebody is hubristic, right, so he'll never decline an opportunity for what? So hubristic की quality क्या होती है? A hubrist is one who has lot of pride and arrogance. So if somebody is hubristic, he'll have this quality where he'll, Arnav says it will be bluster. He'll talk big about himself, right? जो ह्यूब्रिस्टिक है, जो बहुत घमंड में रहता है या एरोगेंस में रहता है, उसकी एक क्वालिटी क्या होगी कि वो अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें बताएगा. सो दैट विल बी व्हाट? अ ब्लस्टर टॉक, राइट. हिडोनिज्म का उससे कोई लेना देना नहीं है. Hedonism, although it's a negative quality and we are looking for negative things, you'll never decline an opportunity for. हम लोग को शो ऑफ चाहिए बेसिकली. जो टर्म वहां चाहिए कि शो ऑफ या इस तरह का ब्लस्टर टॉक होगा, बड़ी बातें करने वाला, हमें वैसा वर्ड वहां चाहिए. सो हिडोनिज्म डजंट फिट द कंटेक्स्ट, राइट. हिडोनिज्म तब होता, अच्छा हिडोनिज्म कब यूज कर सकते थे हम? जब यहाँ पे ह्यूब्रिस्टिक नहीं होता, लेचरस बिहेवियर होता देवे का. बहुत बढ़िया. if he might be having lecherous tendencies, साइबराइट होता, बिल्कुल सही समृद्धि. ठीक है, जहां पे भी प्लेजर सीकिंग बिहेवियर की बात हो रही होती, प्लेजर सीकिंग बिहेवियर या बड़ा सेल्फ सर्विंग एटीट्यूड है, खुद के लिए जीते हैं, मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए काम करते हैं, वो सब हिडोनिज्म की कैटेगरी में आ जाते हैं. सेंसुअलिटी के लिए जीते हैं, ठीक है, सेंसुअल प्लेजर के लिए जीते हैं. सो दैट ऑल विल कम इन हिडोनिज्म, जो कि यहाँ है ही नहीं. ऑगमेंटेशन विल नॉट मेक एनी सेंस. ऑगमेंटेशन इज टू इंक्रीज समथिंग इन साइज और ऑफरिंग, दैट इज ऑगमेंटेशन. ठीक है, किसी चीज का साइज बड़ा कर देना या उसकी ऑफरिंग बढ़ा देना, दैट इज ऑगमेंटेशन. प्रॉफिट विल नॉट मेक, व्हाई वुड प्रॉफिट बी रिलेटेड विद एरोगेंस? ठीक है. एग्रेंडाइजिंग, टू एग्रेंडाइज इज बेसिकली किसी चीज की रैंक या पावर को बढ़ा देना या बढ़ा के दिखा देना. The rank and power of something has been increased, that is aggrandizing it. ठीक है, उसको बढ़ा चढ़ा के दिखा देना, या तो बढ़ा चढ़ा के दिखा देना, ग्लोरीफाई कर देना, या एक्चुअली उस चीज का रैंक में बढ़ जाना. But because hubristic is more related with bluster, we are going with option E. Let's come to question 13. So again, whenever you are reading the sentence, the first call, जब भी बड़े sentence भी पढ़े तो वही लीजिए कि कुछ अच्छा हुआ है, कुछ बुरा हुआ है. So what has happened with this entrepreneur? Something good or bad? Bad हुआ है, right? Arnav is saying humbled and swagger हुआ है. ठीक है, first and second. So something bad has happened with him. Entrepreneur जो था, he was once known for something, overweening something. Overweening is a word which is obviously associated with arrogance, pride. ठीक है, overweening हमेशा arrogance और pride के साथ ही आपको दिखेगा ये word. So he was once known for overweening something, was now seen by others as possessor of broken spirit and timid demeanor. So if somebody has now broken spirit, तो वो टूट चुका है
और timid हो गया यानी lack of confidence हो गया है. जो उसका demeanor है, demeanor is basically your behavior, your mannerism, same as mean जो भी हम लोगों ने एक word किया था, उससे similar है demeanor. So demeanor is basically your way of talking that has become timid. डरते हो, shy करते हो अब लोगों से बात करने में. So आज चीजें आपके लिए खराब हो चुकी हैं. ठीक है, पर पहले आप बहुत ओवरवीनिंग प्राइड और एरोगेंस में थे. सो आई थिंक द ओवरवीनिंग ब्लैंक वुड बी इजी टू फिल. यू आर लुकिंग फॉर वर्ड्स व्हिच आर रिलेटेड विद प्राइड एंड एरोगेंस, and actually two options are qualifying for that. One is pretension and the other is swagger. Overweening swagger or maybe overweening pretension, right? Wealth तो नहीं आएगा क्योंकि wealth is not related to pride and arrogance. हाँ, wealth के बाद शायद किसी में pride और arrogance आ सकता है, but this is not the quality we are looking for within the blank. हम लोग वहाँ पे कोई pride से related word देख रहे हैं और दो words qualify कर रहे हैं, pretension and swagger. क्या आना चाहिए वहाँ पे? Ayushi says it should be pretension. What is difference between pretension and swagger? दोनों ही show off के लिए use होते हैं words, right? पर दोनों में difference क्या है? जो swagger behavior होता है, that is again a show off behavior, but that is through your actions, right? For example, you're wearing a very expensive Rolex watch. So swagger is basically showing that watch off when you're going out with your friends. तो बार बार उसको show off करना, flaunt करना, उसके बारे में बात करना. तो ये जो action से निकल कर आ रहा है, that action which you're doing to show off that watch is, that will come in the category of swagger. तो आपके जो movements या walk या actions होते हैं, उसमें जो show off या arrogance होता है, उसको हम swagger कहते हैं. In general, if you are full of yourself and you have immense pride and arrogance, that would be considered as pretension. ठीक है? So we are looking for a very strong word to put over here, overweening, not just in terms of action, but overall वो person कैसा है, full of pride and arrogance था कभी, so it should be pretension. ठीक है? सिर्फ अगर उसके actions की बात हो रही होती, तो swagger would have been right word. So we'll put pretension for his overweening pretension. And now what has happened with circumstances? He has gone up or he has gone down. So we can very well see that he has gone down. So he used to be very full of pride and arrogance, but now he's possessor of broken spirit and timid demeanor. So he has come down. So obviously he's not unaffected. He is not exalted, because in exalted you go up. Exalted में चीजें आपको ऊपर मिलती हैं. It's more of praise or somebody is bringing you up. ठीक है, आपको ऊपर ला रहे हैं या आपको बहुत ज्यादा माना जा रहा है, that is exalted, which is not the case over here. He has actually come down, and humbled is a right word for that. Somebody down to earth होता है, उसके लिए भी हम humble word use करते हैं, right? So down to earth is basically जो grounded रहता है, and this person has become grounded now, right? Earlier he wasn't grounded, he was full of himself, and now he has become grounded. So he has been humbled by his circumstances. Circumstance उसको नीचे लेकर आ गए. ठीक है? You might be surprised that humble is word which you have always used in positive situation, right? But here you are using humble for circumstances. You are not using for that person. You are saying उसके circumstances जो हैं, उन्होंने उसको humble कर दिया है. जो वो pride और arrogance से जीता था, आज वो down to earth type का behavior हो गया होगा उसका. Next आ जाते हैं question 14 पे. Now this question starts with word though, which we have already seen in our list. It comes under opposite pivots. That means whatever clue is there in this sentence or whatever hint we have to go opposite to that, right? So though she has made attempts towards adopting a more dashed lifestyle, she was not above indulging her proclivity towards dishes. So context is about eating, right? And she was not above indulging her proclivities towards. अच्छा, मेरे को लगता है सेकेंड ब्लैंक इजी है इसको फिल करना. ये डिशेस कैसी होंगी अगर वो इंडल्ज कर रही है इन डिशेस में? इंडल्ज इज to enjoy those dishes, get into that, to savor the dishes. So if she is enjoying those dishes have to be tempting to eat, not just edible, but they should be tempting to eat.
So word is delectable. Delectable is something which is tasty, right? Edible is just eatable, but it doesn't define dishes जो कि बहुत टेस्टी होंगी, but delectable is the word which describes that. Odious तो बिल्कुल नहीं होगी. Odious is something that is nauseatic, smelling, obnoxious, noxious, sorry, that is odious, full of smell. या repulsive जो होगी वो odious हो जाएगी. So that will not be the case. These dishes have to be delectable. अब उसने क्या अटेम्प्ट किया होगा अडॉप्ट करने का, किस तरह की उसकी लाइफस्टाइल होगी वो. देखो वो इंडल्ज कर रही है डिलेक्टेबल डिशेस में, और इस कंटेक्स्ट को हमें दो के साथ कॉन्ट्रास्ट किया गया है. ठीक है, तो दो शी माइट हैव ट्राइड फॉर अ हेल्दी काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, राइट अंशुल, देविका? सो वो कोई हेल्दी लाइफस्टाइल लाने की कोशिश कर रही होगी, बट स्टिल शी इज नॉट अबव इंडल्जिंग हर प्रोक्लिविटीज टुवर्ड्स डिलेक्टेबल डिशेस. सो हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए लेट्स सी व्हाट वर्ड्स आर देयर. सो सैलिटरी इज वन वर्ड. लॉट ऑफ यू हैव इवन सजेस्टेड फ्रूगल, बट फॉर हेल्दी सैलिटरी ज्यादा अच्छा वर्ड है कि फ्रूगल बेटर वर्ड है? Samriddhi says it should be salutary, right? Salutary is more of nutritious and healthy lifestyle, a beneficial one, right Ayushi? So salutary will be a word जो जाएगा. हाँ, यहाँ पे अगर dishes की बात नहीं हो रही होती और पैसा खर्चा करने की बात होती तो आपका frugal choice अच्छा था. Frugal is somebody who is economical, who thinks about spending money wisely, is a frugal one. तो अगर यहाँ पे context dishes में जाने का ना होके खर्चों को लेके होता, शी वॉज नॉट अबव इंडल्जिंग इन एक्सपेंसिव शॉपिंग, इन एक्सपेंसिव और लग्जरी बैग्स, देन वी कुड हैव यूज्ड द कंटेक्स्ट ऑफ फ्रूगल. यहाँ पे हमें ये नहीं बताया गया कि ये डिशेस एक्सपेंसिव होती हैं या किस तरीके की होती हैं. ये डिलेक्टेबल होती हैं, एंड मोस्ट ऑफ द डिलेक्टेबल डिशेस आर यूजुअली नॉट हेल्दी, एंड द कंटेक्स्ट इज अबाउट इंडल्जिंग आल्सो. You never use word indulging for positive situation, right? Indulging is always used for a negative context. If you're indulging in something, you are usually spoiling yourself with that. So it has to be salutary, not frugal. And truculent will not go. Truculent is again belligerent का synonym है. Somebody who's ready to fight, Ayushi, right? एक 15th लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बाकी नेक्स्ट सेशन में करेंगे. The discovery that exposure to allergens through mother's diet during the last trimester could lead to complications during the first year after birth dashed the UK Department of Health to dash dietary recommendations for expecting mothers. So something has happened, right? उनकी एक डिस्कवरी हुई है जिससे पता चला हुआ है कि exposure to allergens through mother's diet during last trimester could lead to complications during first year after birth. जो बच्चा है उसके फर्स्ट ईयर के बर्थ पे कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं. This would have prompted the UK department or instigated किया होगा उन्होंने. So Samriddhi, Arnav, Yashvi, all of you are saying prompted. Satyam is saying prompted. Devika is saying lulled and officiate होना चाहिए. Shivang says prompted and codify. देखो prompted and instigated, they both are synonyms, right? But they will not be used in same situation. This is how your new pattern of GRE, they'll try to confuse you. That a lot of times they'll be putting two synonyms within the options. अब आपको पता होना चाहिए prompted कहाँ use होता है और instigated कहाँ use होता है. lull तो आएगा ही नहीं. lull is basically to allay the fears of people. To lull is basically किसी के fears को कम कर देना. राइट? यहाँ पे फियर कम करने की बात नहीं हो रही है. यूके डिपार्टमेंट ने एक्शन लिया इस डिस्कवरी के बाद. दे हैव टेकन एन एक्शन, राइट? सो दिस एक्शन दे हैव टेकन, इज इट अ पॉजिटिव थिंग और नेगेटिव थिंग? दैट इज हाउ यू विल डिसाइड बिटवीन prompted and instigated. Prompted is a word, right Yashvi? It is a positive thing which they are doing. जो ये डिस्कवरी हुई है उससे अब वो लोग नई डाइटरी रिकमेंडेशन देने वाले हैं एक्सपेक्टिंग मदर्स को कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है with this discovery. So the outcome has been positive. If the outcome is positive, in that case we'll be using word prompted. If the outcome is negative, तब आप क्या यूज करोगे? इंस्टिगेटेड. आपने इंस्टिगेटेड कब सुना होगा? जैसे दंगे इंस्टिगेट हो गए, राइट? कोई रिवोल्ट इंस्टिगेट हो गया. So instigate is more of provocation. You never use word provoke for a positive situation. You never use, आप ऐसा नहीं बोलते हो ना कि I provoked him to succeed in this endeavor. You never provoke somebody for a positive situation. You obviously आप instigate और provoke हमेशा negative outcome के लिए करते हैं, right Ayushi? It could be a criminal thing, it could be something negative.
जिसमें आप इंस्टिगेट करते हो, तो इट इज मोर ऑफ प्रोवोकेशन. सो दैट्स व्हाई प्रॉम्प्टेड वुड बी अ राइट फिट, क्योंकि यहाँ पे जो उन्होंने डिसीजन लिया है दैट्स अ पॉजिटिव डिसीजन. एंड नाउ उन्होंने डाइटरी रिकमेंडेशन को क्या किया होगा, कोडिफाई किया है, क्या ऑफिशिएट किया है, या इंट्यूट किया है. इंट्यूट इज बेसिकली वर्किंग थ्रू गट्स. इंट्यूशन का वर्ड है इंट्यूट. सो डूइंग थिंग्स विदाउट थिंकिंग इज इंट्यूट. बिना सोचे समझे गट फीलिंग पे काम करना इंट्यूट है. तो दिस इज नॉट इंट्यूट, बट दिस कैन बी कोडिफाई. कोडिफाइंग इज पुटिंग समथिंग इन ऑर्डर. टू पुट समथिंग इन ऑर्डर इज टू कोडिफाई इट. एक अरेंजमेंट में ले आना किसी चीज को इज टू कोडिफाई इट. ऑफिशिएट इज किसी को प्लेस करना, ऑफिशियल पोजीशन पे ले आना इज ऑफिशिएट. सो दे आर नॉट पुटिंग somebody on a official position. They are basically doing what? They are arranging. They are creating a dietary recommendation and they are trying to arrange it, what to eat and what not to eat. उसका एक recommendation they are preparing. So it's more of codifying things. Creating such coherent arrangement is what? Codifying it. So we have done 15 questions so far in the easy level sheet. इसके नेक्स्ट जो शीट रहेगा वो हम लोगों का मीडियम लेवल है, एंड देन विल बी डूइंग हार्ड लेवल क्वेश्चंस, जिससे आपके टेक्स्ट कंप्लीशन के क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे. ट्राई टू प्रैक्टिस इट फ्रॉम योर मटेरियल इफ यू आर वेल अवेयर विद मेजॉरिटी ऑफ द वर्ड्स. हाँ, अगर आपको इनके वर्ड्स बहुत सारे नहीं पता हैं तो उससे आप लोग घबराना नहीं. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू विद इन मैनहट्टन टेक्स्ट कंप्लीशन एक्सरसाइजेस they have actually included some words which are no more used in the standard, जो अभी prevalence में नहीं रहे हैं, पॉपुलर मीडिया कल्चर आर्टिकल्स में नहीं आते हैं. वैसे कई सारे वर्ड्स आपको यहाँ मिल जाएंगे जो ये लोग यूज कर रहे हैं. तो आप उससे डिस्करेज मत होना. यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट फ्रॉम योर मटेरियल विच आई हैव रिकमेंडेड. इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट कहाँ से पढ़ना है या क्या चालू करना है, गो टू योर वर्बल गाइड एंड दैट आई हैव ऑलरेडी रिटन कि टेक्स्ट कंप्लीशन की एक्सरसाइज आपको कौन सी फर्स्ट बुक उठानी है, उसके बाद कौन सी सेकेंड बुक लेनी है. सो यू कैन अकॉर्डिंगली कंप्लीट योर प्रिपरेशन, राइट. Next session is going to be on reading comprehension, which I will be taking on Friday. That will not be a text completion class. Text completion हम उसके बाद वाले week पे continue कर लेंगे, right? I want to complete RC also because a lot of you have not started your RC preparation or practice. So I would like to complete at least the concept and strategy part, so you can initiate. You can start with your practice of reading comprehension. Any questions you guys would like to ask? So let's conclude our session. Thank you everyone for attending it. I'll meet you guys on Friday.